اور سب سے پہلے آپ کو بتایا عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں قومی ایئر لائن کے 75% حصص خرید لیے۔ کنسورشیم کے پاس باقی 25% حصص 90 روز کے اندر خریدنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ قومی ایئر لائن کی بیڈنگ میں ابتدائی طور پر 3 بولی دہندگان عارف حبیب کنسورشیم، لکی گروپ کنسورشیم اور ایئر بلو نے حصہ لیا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد قومی ایئر لائن کا انتظام عارف حبیب کنسورشیم کے حوالے کرنے کا عمل شروع ہوگا۔ اشرف ملخم رپورٹ کریں۔ عارف حبیب کنسورشیم نے قومی ایئر لائن خرید لی۔ 75% حصص کی فروخت کے لیے بولی اسلام آباد میں ہوئی، جس میں ابتدائی طور پر 3 بولی دہندگان عارف حبیب کنسورشیم، لکی گروپ کنسورشیم اور ایئر بلو نے حصہ لیا۔ ایئر بلو نے 26.5 ارب روپے کی بولی لگائی، جو حکومت کی مقرر کردہ 100 ارب روپے کی ریفرنس پرائس سے کم تھی، اس لیے ایئر بلو کنسورشیم نجکاری کے عمل سے باہر ہو گیا۔ اس کے بعد عارف حبیب اور لکی کنسورشیم نے اوپن بیڈنگ میں حصہ لیتے ہوئے 13 مرتبہ بولی کی رقم بڑھائی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے کی بولی لگائی تو لکی گروپ نے بولی مزید بڑھانے کے بجائے عارف حبیب کنسورشیم کو مبارکباد دے دی۔ وفاقی کابینہ سے بولی کے عمل کی منظوری کے بعد عارف حبیب کنسورشیم کو سرکاری طور پر کامیاب قرار دے کر قومی ایئر لائن کا انتظام اس کے حوالے کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ 135 ارب روپے کی بولی کی رقم کا 92.5% قومی ایئر لائن کو ملے گا، جس سے پی آئی میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ باقی 7.5% حکومتی خزانے میں جائے گا۔ عارف حبیب کنسورشیم کو 135 ارب روپے کا 2/3 حصہ 90 دن کے اندر اور باقی رقم 1 سال میں ادا کرنا ہوگی۔ کنسورشیم کے پاس باقی 25% حصہ 90 دن کے اندر خریدنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ بولی جیتنے کے بعد عارف حبیب نے کہا قومی ایئر لائن میں نئے جہاز شامل کیے جائیں گے۔ انیشیلی جو ہے وہ تو 40 جائیں گے، ابھی اس وقت جو ہے کوئی 18-19 ہیں اور اس میں سے آپریشنل 13-14 ہیں۔ اس کو پہلے فیز میں جو ہے وہ 38 کریں گے، پھر 65 کریں گے اور پھر ڈپینڈنگ اپون دا ڈیمانڈ انشاءاللہ اس کو اور بھی جو ہے وہ بڑھانے کا ارادہ۔ ہمارا قومی ادارہ ہے اور الحمدللہ اس نے بہت اچھے دن دیکھے ہیں۔ اس کے جو سارے امپلائیز ہیں الحمدللہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہیں، بہت کام کو جو ہے بہت اچھا جانتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا قومی ایئر لائن کی کامیاب نجکاری پاکستان کی کامیابی ہے۔ خریدار، کمپنی، چیئرمین نجکاری کمیشن اور وزیر اعظم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان کے ہر شہری کو مبارک ہو۔ آج صرف پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ آئی تھنک ایک نہایت شفاف اور بہترین طریقے سے یہ پروسیس ہوا ہے۔ میں محمد علی صاحب کو اور پوری ٹیم کو، پرائم منسٹر کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اسپیشلی جنہوں نے یہ پی آئی اے جیتی ہے ان کے لیے، اور بیسٹ آف لک، اور انشاءاللہ وی آر آل لوکنگ فارورڈ کہ دوبارہ سے پی آئی اے میں ٹریول کرنا شروع کریں۔ بولی جیتنے والے کنسورشیم کو یہ اختیار ہے کہ وہ 2 مزید کمپنیوں کو اپنے کنسورشیم کا حصہ بنا سکے۔ جیو نیوز کو حاصل کردہ معلومات کے مطابق فوجی فرٹیلائزر کو کامیاب کنسورشیم کا حصہ بنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اگر لکی کنسورشیم بھی بولی جیت جاتا تو فوجی فرٹیلائزر اس کا حصہ بنتا۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی آئی اے کی نجکاری پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا پی آئی اے کے نجکاری سے معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ الحمدللہ بولی کا عمل انتہائی شفاف رہا۔ پی آئی اے کی نجکاری ثبوت ہے کہ سرمایہ کاروں کا ملکی معیشت پر اعتماد بحال ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے نجکاری کے لیے کوششیں کرنے پر چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، مشیر برائے نجکاری محمد علی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا نجکاری کمیشن اور دیگر متعلقہ افراد کی کوششیں بھی لائق تحسین ہیں۔ عارف حبیب گروپ کے چیئرمین عارف حبیب نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی بولی کے لیے ہمارے مشیروں کا تخمینہ 131 ارب روپے تھا۔ ہمارا اندازہ تھا بولی 130 ارب روپے تک جائے گی۔ ہمارا اصرار تھا کہ ہم 100% شیئرز خریدنا چاہتے ہیں، لیکن نجکاری کمیشن نے بہت اچھا طریقہ کار اپنایا اور 25% شیئر کے لیے آپشن دیا ہے، جو 90 دنوں میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایئر لائن کو بھی لا سکیں اور کچھ ایئر لائن سے ابتدائی بات بھی ہوئی ہے۔ ہمارے جو ایڈوائزر ہیں ان کی جو ویلیویشن تھی وہ 131 بلین تھی۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کوئی اراؤنڈ 130 بلین کے قریب جو ہے یہ ٹرانزیکشن جو ہے اچیو ہو سکے۔ یہ کمفرٹ بہت بڑا تھا کیونکہ جتنا آپ ہائر بٹ کرتے ہیں اتنا ہی کمپنی کے پاس فنڈز جو ہے وہ زیادہ اویلیبل ہو جائیں گے فار ڈیولپمنٹ۔ وہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ویلیویشن حاصل۔ ہم یہ انسسٹ کر رہے تھے 100% خریدنا چاہتے ہیں۔ پروڈکشن کمیشن نے بہت اچھا اسٹرکچر کیا اور انہوں نے بڈ جو ہے وہ
वो 75% की रखी, 25% का उन्होंने ऑप्शन दिया है जिसको कि 90 डेज में एक्सरसाइज करना है, और उसकी पेमेंट फिर जो है वो साल सवा साल के अंदर विद 12% पर एनम प्रीमियम पे उम्मीद करते हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। 25% का जो ऑप्शन है ये एफर्ट करेंगे कि हम एयरलाइन को भी जो है उसमें ले आ सकें। इनिशियल कुछ एयरलाइंस से जो है वो बात भी हुई है। आई थिंक ह्यूज पोटेंशियल है। रिलीजियस ट्रैवलिंग है, वो तो एक कैप्टिव मार्केट है ना हमारे पास। हज और उमरा जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, अब 14 मिलियन से ज्यादा हैं। हम बेस्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे होगा। ऑलरेडी जो हमारी टीम है, आई थिंक उसमें बहुत सारे कैपेबल लोग हैं, उनका हम फुल यूटिलाइज करेंगे। और जहाज लाने के प्लान है तो हमें और लोगों की जो है वो जरूरत होगी। बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है एग्जिस्टिंग लोगों में से भी और एडिशनल भी इंशाल्लाह एकोमोडेट कर सकेंगे। एग्जिस्टिंग लोगों को भी पूरा मौका नहीं मिल रहा था। बेहतरीन लोग जो है वो मौजूद हैं और उनको हम पूरा तरीके से सपोर्ट करें कि वो अपने जोहर दिखा सकें। कुछ अगर पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं तो उनके साथ भी जो है वो बैठा जाएगा और उनको बताएं कि भाई आपकी लॉयल्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंपनी से होनी चाहिए। चेयरमैन निजकारी कमीशन और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने कहा है कि 135 अरब रुपए बहुत मुनासिब कीमत है। हम 120 अरब रुपए से ज़ायद की तवक्को कर रहे थे। हुकूमत को 7.5% के हिसाब से 10 अरब रुपए मिलेंगे। साथ ही हुकूमत के पास मौजूद 25% शेयर्स की फ़रोख्त से 45 अरब रुपए हासिल होंगे। यूं हुकूमत को इस निजकारी से 55 अरब रुपए मिलेंगे और 125 अरब रुपए PIA में जाएंगे। PIA के पेरिस और न्यूयॉर्क के होटल्स इस निजकारी का हिस्सा नहीं थे, ये दोनों हुकूमत के पास ही रहेंगे। 120 अरब से ऊपर की एक्सपेक्टेशन थी हमारी और माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि 135 अरब इज अ वेरी फेयर प्राइस। मैं क्लैरिफिकेशन शाहजेब साहब आपके प्रोग्राम के थ्रू कर दूं। गवर्नमेंट को 135 अरब में से जो 7.5% मिलेगा तो गवर्नमेंट को 10 अरब ये मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास 25% कंपनी भी जो रहेगी उसके पैसे भी गवर्नमेंट को आएंगे जो कि 45 अरब होंगे। तो टोटल वैल्यू चूंकि PI की 180 अरब थी तो 45 अरब गवर्नमेंट के पास 25 अरब की वैल्यू और 10 अरब और, तो गवर्नमेंट को 55 अरब मिलेंगे और 125 अरब PIA में जाएगा। अपना बिजनेस प्लान जो बनाया था वो तमाम बिडर्स के साथ शेयर किया था और हमने बिडर्स से कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया है कि दे विल ट्राई टू मीट दैट बिजनेस प्लान। अभी PI के 18 प्लेन्स ऑपरेशनल हैं। हमने प्रोजेक्ट ये किया है कि 4 साल के बाद 38 प्लेन्स ऑपरेशनल होंगे, तो मोर देन डबल हो जाएगी उसकी फ्लीट। अभी PI में साल के 40 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। वी आर होपिंग के अगले 4 सालों के बाद ये तकरीबन 70 लाख पैसेंजर्स जो हैं वो होंगे। PI का साल का जो रेवेन्यू है तकरीबन 250 अरब के करीब है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल के बाद ये 500 अरब के करीब हो जाएगा। इसकी फ्लीट चेंज होगी, इंजन रिपेयर होंगे, तो वील हैव अ मच बिगर फ्लीट इंशाल्लाह। पेरिस का जो होटल है स्क्राइब और जो रूजवेल्ट है वो ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो हमारी होल्डिंग कंपनी है PI की, उसके अंदर है। तो स्क्राइब तो हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में नहीं है, गवर्नमेंट अभी उसको रिटेल करना चाह रही है। रूजवेल्ट जगह पर है, बड़ा एक प्राइम प्रॉपर्टी है और उस वहाँ पर सारे हाई राइजेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त जो रूजवेल्ट की जो बिल्डिंग है 16 मंजिलें हैं उसमें तो और होटल है, तो वो फीजिबल नहीं है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। कैबिनेट का फैसला ये कि उसके अंदर हम किसी न्यूयॉर्क रियल एस्टेट डेवलपर के साथ जॉइंट वेंचर करके उधर हाई राइज बनाएंगे। लास्ट मंथ फैसला हुआ है कि 3 एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये प्राइवेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म कंसेशन के अंडर मैनेजमेंट के लिए दिए जाएंगे। ये तीनों एयरपोर्ट्स इंशाल्लाह हम ओपन बिडिंग के थ्रू देंगे, उसमें G2G नहीं होगा। हमारे पास जो सबसे बड़ा चंक जो है जो कि चैलेंजिंग भी है वो है डिस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिसीजन ये कि उनको या तो लॉन्ग टर्म कंसेशन पे प्राइवेटाइजेशन पे बेचें। जब तक हम पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं देंगे ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। ज़रिए तरक्याती बैंक में ऑलरेडी 3 पार्टीज हैं जो मैं कह रही हूँ उनका बहुत इंटरेस्ट है, 2 बैंक से इनका इंटरेस्ट है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2026 में अल्लाह ने चाहा तो यू विल सी मोर सक्सेसेस इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। PTI के रहनुमाओं की जानिब से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बयानात का खैर मक़दम करते हुए कहा मुज़ाकरात जायज़ मुतालबात पर ही हो सकते हैं, मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्रेट कर रहा हूँ।
पंजाब असम्बली में प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की मअतली बहस। वज़रा और हुकूमती अरकान ऑर्डिनेंस की मअतली के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। बोले कमज़ोर तबके के लिए लाया गया कानून मअतल कर दिया गया, अब दोबारा कानून साजी होगी। अपोजिशन अरकान ने अदालती फैसले पर वज़रा के एतराज़ात टकराव करार दे दिए। आज़म मलिक रिपोर्ट करें। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तली के मामले पर पंजाब असम्बली में बहस। वज़रा का कहना था कि ये ऑर्डिनेंस कब्जा माफिया के खिलाफ था, जिसे रोककर कमजोर और लाचार अफराद के हकूक सलब किए गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस को दोबारा असम्बली में लाकर मंजूर करवाया जाएगा। अपोजिशन अरकान का कहना था कि अदालती फैसले को मनोन तस्लीम करना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हुकूमत अदलिया के निज़ाम पर खुद सवाल उठा रही है। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन, आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा को खराज अकीदत की करारदाद मंजूर की गई। इसके अलावा भारतीय सूबे बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मज़म्मती करारदाद समेत मुफादे आमा की दीगर करारदादें मंजूर कर ली गईं। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास बुध सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब बार काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट के प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने के फैसले को खुशाइन करार दिया है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल मोहम्मद अशफाक कहोट और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल ज़बीहुल्लाह नागरा ने मुश्तरका बयान में कहा कि अदालत आलिया लाहौर ने हुकूमत पंजाब के एक गैर आइनी, गैर कानूनी और बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम ऑर्डिनेंस के नफाज को रोकने के लिए अहकाम जारी किए। वकला बरादरी न सिर्फ इस अदालती फैसले की हिमायत करती है बल्कि अदलिया के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब का अदालती हुक्म पर इख्तियार किया गया रवैया नाकाबिल बर्दाश्त, गैर आइनी और अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। मुश्तरका बयान में ओनरशिप प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस कोई फिलफौर वापस लेने का मुतालबा किया गया। कराची में डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। हैवी ट्रैफिक पर सुबह 6 से रात 10 बजे शहर में दाखिले पर पाबंदी होगी। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए लगाई गई। हैवी ट्रैफिक सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, नेशनल हाईवे से गोदाम और यूनुस चुरंगी, दाऊद चुरंगी से जाम सादिक ब्रिज, नदरन बाईपास से पराचा चौक, सीमेंस चुरंगी, नदरन बाईपास से गुलबाई, माड़ीपुर से कराची पोर्ट, लिंक रोड काठौर से सस्सी टोल प्लाजा जा सकेगी। अफगानिस्तान T20 कप्तान राशिद खान की साबिक क्रिकेटर केविन पीटरसन के साथ गुफ्तगू। राशिद खान ने केविन पीटरसन को बताया वो अफगानिस्तान में गलियों में नहीं फिर सकते, आम कार में सफ़र नहीं कर सकते। उन्होंने अफगानिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी हुई है, कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी है। अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी रखना आम सी बात है। केविन पीटरसन राशिद खान की बातें सुनकर हैरानगी का इजहार करते रहे। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी एहसानुल हक ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समंदर पार पाकिस्तानियों की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देते हैं। जद्दा में इशाइये से खिताब में उनका कहना था ओवरसीज़ पाकिस्तानी महज तरसीलात ज़र भेजने वाले नहीं बल्कि पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी और रियासती इस्तेहकाम की असल क़ुव्वत हैं। उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म की सियासत या मसलहत कबूल नहीं की जाएगी। इशाइये में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अफजाल भट्टी, बोर्ड मेंबर और चेयरमैन तालीमी कमेटी मोहम्मद कामरान खान, सलमान खान, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक लक और दीगर मुकर्रीरीन ने भी खिताब किया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब कर दिया गया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुताबिक शहर के गिरजाघरों पर भी दिलकश लाइटिंग की गई है। PHA के MD राजा मंसूर अहमद ने इस मौके पर एक बयान में कहा मुल्क की तरक्की में अक़लियतों का किरदार नुमाया है। पेशावर के मसीही घरों में क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। गिरजाघरों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है, जबकि बच्चे और घर के दीगर अफराद भी खुशी के साथ इन तैयारियों में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं अरूबा इब्राहिम। जी, क्रिसमस करीब आते ही पेशावर के मसीही घरों में तैयारियां उरूज पर हैं। घरों को क्रिसमस ट्रीज, बरकी लाइट्स और दीगर सजावटी अशिया से सजाया जा रहा है। खानदान के अफराद मिलकर घरों की सफाई और सजावटों में मसरूफ हैं। बच्चे जो हैं वो क्रिसमस के हवाले से सजावटों में काफ़ी खुशी से हिस्सा ले रहे हैं। हम अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं, काफ़ी सजावट वगैरह करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने क्रिसमस सजाया है। और भी बाहर इलाकों में
मोहल्ला भी हमसे जाते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, बच्चे खुश होते हैं, बस कैरल वगैरह निकालते हैं और खुशी का इजहार करते हैं और ये पैगाम होता है मोहब्बत का, अमन का, सुलह सलामती का। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार इनके लिए मोहब्बत, खुशी और बाहिमी सुलह का पैगाम होता है और इसीलिए इस त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाने के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। जी, दुनिया भर की तरह दुबई में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। रंगों और रोशनियों से मुज़य्यन दीदा ज़ेब क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज के तहाइफ के साथ दुबई के ग्लोबल विलेज और जुमेरा साहिल को क्रिसमस की रंगीनियों से सजा दिया गया। लीबिया के आर्मी चीफ के तैयारे से राबता मुनक़ता हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा अंकारा से रवाना हुआ था। तैयारे में लीबिया के आर्मी चीफ के हमरा 5 अफराद सवार थे। अंकारा एयरपोर्ट से रवानगी के कुछ देर बाद तैयारे से राबता मुनक़ता हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात पर ताजर हमसे राबता करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। उन्होंने कहा कि भत्ताखोरों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। IG सिंध ने कहा कि भत्ताखोरों के रेड वारंट इंटरपोल ऑफिस पहुंच चुके हैं। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि घुटकी से बस अगवा होने पर सिंध और पंजाब पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऑपरेशन किया। पहले रोज 12 मुखवी जबकि दूसरे रोज रहीम यार खान से 4 मुखवी बाजियाब करवाए। भत्ताखोरी पर वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि वसीउल्लाह लाखो, जमील छांगा, बहादुर PMT और गुलशेद जागरानी नाम के 5 नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। जो क्रिमिनल पालेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। नाज़िमाबाद में जहां छापा मारा वहां मौजूद लोग भत्ताखोरों के सहूलतकार बने हुए थे। हमारे अफसरान जो हैं इस चीज़ का कतई भी इंतज़ार नहीं कर रहे कि जाकर हम कोई पास्ट में जैसे होता था या कुछ हमारे अफसर जो मैं आज कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन रहीम यार खान के जो SSP या वहाँ पर जो अफसर काम कर रहे हैं वो जैसे मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। सिंध पुलिस ने मैनेजमेंट का ये तो लफ्ज़ ही निकाल दिया है। हम चाहते हैं कि हमने कच्चे के एरिया से जो भी रिमेनिंग डाकू हैं या सरेंडर करेंगे या उनको हम एलिमिनेट करेंगे। उसके अलावा दूसरी कोई और पॉलिसी है नहीं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि वसूल्लाह लाखों का नाम भत्ते की वारदातों में सरफहरिस्त है। रेड वारंट इंटरपोल के हेडक्वार्टर फ्रांस 1 हफ्ता पहले पहुंच चुका है। वसूल्लाह लाखों का जो रेड वारंट का रेफरेंस है वो इंटरपोल के हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में पहुंच चुका है और उसको तकरीबन कोई 1 हफ्ता हो चुका है। और इसी तरह से समद काशावाड़ी और अहमद अली मक्सी, इन दोनों के रेफरेंसेस यहाँ से प्रिपेयर होके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में इस्लामाबाद पहुँचे, जो आज मुझे रिपोर्ट आई है कि उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया है FIA में। वज़ीर दाखिला ने बताया कि ताजिरों की शिकायत सुनने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। ई चालान के हवाले से गुफ्तगू में कहा कि रॉन्ग वे आने वाले और सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर लाजमी चालान होगा। कैमरामैन तलहा खान के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग रिगाटा में पाकिस्तानी रोअर्स ने शानदार कारकर्दगी के जरिए 14 गोल्ड समेत 20 मेडल्स अपने नाम कर लिए। मेंस में मोहम्मद फरीद, आरिफ और विमेन में इनाया जैदी बेहतरीन रोअर्स करार पाए। थाईलैंड में होने वाले 3 रोजा इवेंट में 8 ममालिक के 200 से ज्यादा रोअर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नुमाया रही। कौमी रोअर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत 20 मेडल्स हासिल किए। फरीद मोहम्मद आरिफ 6 तलाई और 2 चांदी के तमगों के साथ इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। विमेन इवेंट में अनाया जैदी 5 गोल्ड मेडल के साथ बेहतरीन रोअर रही। साबिक टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल की साहबजादी हुरिया फैसल ने भी 1 गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तानी दस्ते ने कोच असगर अली की सरबराही में इवेंट में शिरकत की। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की बैटर सिद्रा नवाज और गयास खान का निकाह के बंधन में बंध गए। लाहौर में हुई तकरीब में दुल्हा और दुल्हन के करीबी अजीज व अकारिब शरीक हुए। रुखसती आज होगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की विकेट कीपर बैटर सिद्रा नवाज के निकाह की पुरवखार तकरीब लाहौर में हुई, जिसमें करीबी अजीज व अकारिब ने शिरकत की। सिद्रा नवाज का निकाह गयास खान के साथ हुआ है। सिद्रा नवाज की मेहंदी और माइयों की तकरीबात में साथी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। बिग बैश T20 लीग के मैच में हारिस रऊफ की मेलबर्न स्टार्स ने हसन अली के एडिलेड स्ट्राइकर्स को 6 विकेट से मात दे दी। फातेह टीम के पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।